Heartily welcome our chief guest, Jagannath Hadradas, Jagannath Sukalam Rosu, JNU. And also I invite our principal sir, D.S. Basaraju sir, to this function. I also invite my colleagues and our students for this function. Here, Jagannath Hadradas sir is one of the alumni student of JNV Roswal, and is first rank in 10th standard as well as second rank in 12th standard. After completion of the second year, he studied BTech in Mechanical Engineering in BGTI College, Mumbai. Then afterwards, started his career for teaching. 8 years lectureship is done by sir in various pre-engineering colleges in Mumbai and as well as Pune. Then afterwards, since last 12 years, he joined full-time devotees in ISKCON for guiding students for spiritual knowledge and life values and skills. Once again, I heartily invite our chief guest, Jagannath sir. I kindly request Principal sir to invite Jagannath sir. Next, I invite D.S. Basaraju sir, our principal sir. Right? So today we are having a session on the spiritual values and also life skills. It is very necessary to have the life skills in our life so that we can manage our life in a very meaningful way. So we come across so many challenges every day. So these life skills help us to go in the right way so that we can resolve the problems and we can move in the right direction. For which we are having distinguished guest with us, Mr. Jagannath Yatra Das. Mr. Jagannath Yatra Das, earlier he was known as Jagdish Sukalam Deshmukh. I am proud to say he is the alumni of JNV Roswal in Maharashtra. So he also the JNV Roswal from class 10th, and he was the topper in that school, JNV. So he was the first rank holder in JNV, topper of the JNV Roswal. He is with us today, and he completed his senior secondary certificate examination with the second rank in Nasik division. Nasik, it is in
Maharashtra. And then he did his MTech, BTech, and then MTech. Then worked as professor, assistant professor in different engineering colleges. And he got himself associated with ISKCON, the one with the spiritual mission of our country, the one which is responsible for upholding the spiritual values of our country, for which our country is well known in the entire world. So, he got associated with ISKCON during his student days when he was doing his BTech. Then he joined as a monk in ISKCON, and since last 12 years he has been associated with it, and he is visiting different JNVs, different schools and colleges, and he is having a lot of passion towards his alma mater, that is JNVs, and he has visited over 122 JNVs for this program. I am very happy to say that. So he has visited more than 122 JNVs, and then without expecting anything, even 1 rupee he won't take, without taking any money. So he is doing this job. So can we call it as a job? So this is really the worth mentioning, work which he is making or doing to bring or to develop the life skills and also spiritual values among the children of JNVs. And I hope this session is going to be very fruitful. And on behalf of the entire JNV Gadag family and also Navodaya Vidyalaya Samiti, I am grateful to him for choosing our JNV for his program. And once again, I welcome him for this program. And I request is to interact with you and have free conversation whenever you ask some questions or maybe some interactions, you please respond, and whenever you have some doubts, you can ask him. Okay? So please, sir. So I thank our dear principal sir to give me shelter and welcome here at JNV Gadag. I've been so happy to be with you today evening. Today is my 124th school for visit in last 2 years. Tomorrow will be 125th visit next school somewhere. So the idea is that service is important. That's why our Samiti, Navodaya Samiti, has given simple guideline. Come to learn and then go to serve. It was easy to say, come to learn and go to earn. It was easy to say, but they know only earning will not make you happy. It's a small part of life to earn money, but it won't satisfy your heart. So Samiti knows, after good learning in JNV, you will be competent to serve the society. So come to learn and then go to serve. So our motivation should be learning for serving, which is all-time motivation, whole life motivation, all time. Just studying for exams will make your head jam. Exam. Our head becomes jam. So much confused, so much tense. But when you have that motivation to learn, to understand, to acquire knowledge, you feel absorbed, you feel happy, you feel always inspired, all time. You find out time to learn something new, all time. Even in vacation, I hope you have vacations, no? Yes, you love vacations. No.
Vacations we love. So, but in vacations, you know what time you wake up in the morning or what time you wake up in the day, afternoon or evening, I don't know. So, we change our habits. In Navodaya, we have regular schedule, regular habits, waking up and schedule pakka, perfect timings. And Saturn goes whole day, so many times. But in vacation, we lose our habits, good habits, and we cultivate some wrong habits, bad habits. Waking up late, eating any time, eating sometimes junk food. So we should know that we are here to learn the best, not just for exams, not just for marks, not just for position, not just for any percentage or the certificates. We are here for life, to make our life best possible. Okay, so our session is for life. Yes, life values, life skills, life science. Life is the most important. So I will request you to have a small time for prayer. Small prayer. So that our mind becomes peaceful, focused to hear and understand the topics I am speaking or the points I am speaking. So I will request you to join your hands with your chest and sit straight. सीधा बैठना है, ठीक है? आप लोग हिंदी समझते हैं? देश भाषा? तो अभी इसके आगे मैं हिंदी बोलूँगा। इंग्लिश तो मुझे इतना अच्छा मतलब बोलते तो है लेकिन इतना सुख नहीं मिलता है, अपनापन नहीं लगता है मैं विदेश में आया हूँ इंग्लिश बोलता हूँ। तो अपने देश में तो अपनी भाषा दिल की बात है, मन की बात है या आत्मा की बात है, जीवन की बात है, तो अपनी भाषा में ज़्यादा समझ में आता है। गॉड बोलना, भगवान बोलना बहुत अंतर है। गॉड, ओ माय गॉड नॉट मेक्स ना, डजंट मेक सो मच सेंस। ये भगवान है ना, ये भगवान है, तो भगवान जो बोलने में जो एक विशेष भाव आता है वो गॉड बोलने में नहीं आता। एनीवे, सो प्लीज कीप साइलेंस एंड जॉइन योर हैंड्स विथ योर चेस्ट। अपने हाथ जो है छाती से जोड़ो, आंखें बंद की, सीधा बैठना है, बी कंफर्टेबल। बहुत लोग चिपक के बैठे हैं, यहाँ बहुत जगह है, थोड़ा सा स्पेस बनाइए, बहुत चिपक के नहीं बैठना है। वी शुड नो हाउ टू सिट, हैव सम कंफर्ट, हैव सम कंफर्ट, डोंट स्पीक, डोंट मेक नॉइज, पीसफुल, जस्ट मेक सम स्पेस फॉर यू, क्योंकि थोड़ा समय बैठना है तो एकदम चिपक के नहीं बैठना। ओके, हो गया। The point is we should know how to make ourselves comfortable, sitting, walking, living. Okay, silence please. जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनना है और पीछे बोलना है, प्रयास करना है। आपको अनुभव आएगा, कुछ छोटा एक्टिविटी है, भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रणाम करना, या ओम ना, ओमकार का थोड़ा उच्चार जप करना, इतना हमें मदद देता है, फायदा देता है। मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होता है। क्या अनुभव है आपके? तो यहाँ पे होता ही रहता है बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़, लेकिन आज भी आपको अनुभव आएगा। ठीक है, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस। बोलो। मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? मैं पहले बोलता हूँ, पहले सुनना है, पीछे बोलना है, ठीक है? ओ
आपको पता होना चाहिए ओम जब बोलते हैं तो जो ये हुई है ओ उसको थोड़ा छोटा बोलते हैं और जो ये थोड़ा लंबा बोलते हैं। आपने उल्टा किया। ओम में ओ जो है थोड़ा छोटा होता है, ओम जो होता है म का पार्ट वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लंबा होता है। 1 सेकेंड, लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो पहले सुनो कैसे मैं बोलता हूँ। ओम बोलो। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम नमः शिवाय। सी हमें बस बोलना नहीं है, हमें दिल से प्रेम से बोलना है, ठीक है, ताकि भगवान से अपना कनेक्शन हो। केवल हमें एक काम नहीं करना है, भगवान से जुड़ना है, योग कनेक्शन होना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। कनेक्शन कब होगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे तभी तो। कनेक्शन लूज होगा तो वे शक्ति नहीं मिलता है। कनेक्शन पक्का चाहिए, स्ट्रांग, टाइट। ओके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram
स्लोली कैन ओपन योर आइज नाउ। आइए अपने आगे खोल सकते हैं। तो अभी अपना मन जो है शांत रखना है। हमें सीखना है कि एकदम अपना मन को बदलना नहीं है, गियर झटका ही देना है, स्लोली, है ना। एक स्टेज मतलब अपना जो एक स्थिति होता है उससे बाहर निकलना है तो आहिस्ता स्लोली, और जब अंदर जाना है कोई स्थिति में वो भी आहिस्ता स्लोली, सावकाश। ये नहीं कि झटके में नहीं। क्यों? तब शांति और तब एक विशेष शक्ति मिलती है, संयम आता है, संयम, सेल्फ कंट्रोल आता है, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आत्मसंयम, और फिर आत्मविश्वास आता है। बहुत समय हमें आत्मविश्वास नहीं, हमें चिंता हो जाती है, नर्वसनेस ना, चिंता हो जाती है, तनाव आ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अपना हमें क्षमता है, हमें बुद्धि भी है, हमें अच्छा ज्ञान भी होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कौन से समय, हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? आदत ऐसे लगाई है कि अशांत होते हैं। शिक्षक जब स्कूल में सिखाते हैं, क्लास में सिखाते हैं, तो अपना विचार शिक्षक के ऊपर होना चाहिए। शिक्षक क्या सिखाते हैं, टीचर क्या सिखाते हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं देखना है, क्योंकि हम बाकी बच्चों को देखने नहीं आए हैं, हम शिक्षक से सीखने आए हैं। क्यों? आदत का भाग है। ऐसे नहीं होगा अभी चलेगा बाद में देखेंगे, आदत पड़ जाएगा, गलत आदत। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं, सर फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन भटकता है, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, कभी कभी याद नहीं रहता है, याद नहीं आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये तो ऐसा कुछ 2 दिन का चीज़ नहीं है, कोई सुबह शाम दवा खा के कैप्टन कैप्सूल कैप्टन कुछ टॉनिक पी के हो जाएगा। ये अपना आदत का भाग है, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। कैसे हम आदत लगाते हैं शुरुआत से, वही जीवन बन जाता है। अभी इस समय, अब तक का नहीं, अभी इस समय आप जिस आदत में जो करने वाले हैं उसका प्रभाव भविष्य में होगा, कल होगा, आगे होगा। और आज जो है आपके पास जो भी, वो क्या है, अब तक जो किया है उसका प्रभाव है आपके ऊपर। आपने अब तक जैसे आदत लगाई है तो आपका वैसा मन है, आपका वैसा सिस्टम है, आपका वैसा जीवन पद्धति है। हमें समझना चाहिए कि अपनी पद्धति सही है या गलत है, सोचना चाहिए, क्योंकि वो सीखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ठीक है, ये किसके लिए है, प्रोफेशन हो ना, एक वोकेशन, उसके लिए, जॉब के लिए है। लेकिन विद्यालय केवल उसके लिए नहीं है, विद्यालय हमें उसके साथ साथ जीवन भी सिखाता है। यदि केवल एक जॉब ही लेना है और उसके लिए पढ़ना है वो तो ऑनलाइन और आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस तो होती है सब जगह। लेकिन विद्यालय का मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरा पैकेज होता है, कंप्लीट पैकेज, कि बच्चों को जीवन का भी उनको एक अच्छा संस्कार मिले, ये विचार शिक्षकों का होता है। कोचिंग क्लासेस में वो नहीं होता है। कोचिंग क्लासेस केवल A+B जो एकदम टू द पॉइंट, जो आपको एग्जाम में आएगा सिलेबस है वही बोलेंगे। लेकिन टीचर्स जानते हैं कि बच्चों को उसके साथ साथ जीवन के लिए भी ज्ञान देना है, विद्यालय, जीवन विद्या भी देना है। कोचिंग क्लासेस नहीं है नवोदय, विद्यालय है, जहाँ पे हमने तो पाया जीवन की विद्या, और वही हमें बहुत मदद किया है। आज भी मैं जो जीवन जी रहा हूँ उसका फाउंडेशन कहाँ बना, नवोदय में बना। तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें वो शिक्षक मिले जिन्होंने
बहुत अच्छा हमें संस्कार दिया, अच्छा विचार दिया, अच्छा ज्ञान दिया पढ़ाई के साथ साथ। तो ये विद्यालय नवोदय में विशेष खास बात है कि अभी हम पूरा देश घूमते हैं और बहुत जगह में IIT या बाकी जो बड़ी बड़ी कॉलेज होती हैं, MBBS के कॉलेज, सब जगह मैं गया हूँ तो देखा हूँ कि नवोदय जैसा माहौल कहीं नहीं है। माहौल मतलब वातावरण कहीं नहीं है। ऐसे शिक्षक आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपको कितनी बार बेटा आपने खाना खाया, आपने नाश्ता किया, आपने दवा लिया, आप सब घर पे मतलब हमेशा पूछते रहते हैं। आपको पूछते हैं सर कभी टीचर, और कभी बहुत समय तो वो भी देखते हैं कि बच्चों ने सब खाया कि नहीं खाया। कुछ बच्चे वेजिटेबल निकाल देते हैं, नाश्ते में जो होता है सब्जी कुछ भी जो होता है, सब्जी निकाल देते हैं, बस चावल खाते हैं। टीचर बोलते हैं वो खाओ सब खाओ। मतलब इतना माता पिता को भी टाइम नहीं रहता है अपने घर में सब देखने के लिए और सब बोलने के लिए। यहाँ भी शिक्षक हमें उतना ही बताते हैं कि कुछ बच्चे कम खाते, कभी नाश्ते में कभी लंच में, कम क्यों खाया, थोड़ा और ले लो। ये भी मैं देखा हूँ, हमने भी अनुभव किया कि आज भी हम देखते हैं नवोदय में टीचर्स वहाँ खड़े होते हैं कि बच्चों ने ठीक से लिया नहीं लिया। कोई बच्चा केवल चावल खाता है, कभी चपाती नहीं खाता, कभी सब्जी नहीं खाता, तो उसको बोलते हैं। तो ये अपना सौभाग्य है कि हमें नवोदय में ऐसे खास शिक्षक मिले हैं जो आपको कभी नहीं मिलेंगे बाहर बाद में। ना नवोदय के पहले मिले होंगे ना नवोदय के बाद मिलेंगे, हमें तो नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, हमें ऐसे शिक्षकों को हमेशा माता पिता जैसा सम्मान देना चाहिए, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों? तो हमें फिर आशीर्वाद मिलेगा और एक शांति होगी, एक सपोर्ट लगेगा। क्योंकि हम यदि सही भावना में नहीं होंगे, सही आदर्श नहीं दिखाएंगे, तो हमें उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो देंगे कि हम ले नहीं पाएंगे, वो हमें आशीर्वाद भी देंगे, शुभेच्छा देंगे, हमें अपना प्रेम देंगे, हम ले नहीं पाएंगे। क्यों? अपना चेतना ठीक नहीं है, अपना भाव अनुकूल नहीं है लेने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं हाँ मुझे क्या करना, मैं तो बस अपना पढ़ूंगा। पढ़ना ठीक है, लेकिन उससे जीवन भी बनने वाला है। पढ़ना छोटा चीज़ है, हमें ये भी सीखना है कि हमें कैसे जीवन जीना है, एक दूसरे को कैसे सम्मान देना है, कीमत देना है। क्यों? जो कहावत है इंग्लिश में आपने सुना होगा, इन गिविंग वी रिसीव, इन गिविंग वी रिसीव। बहुत छोटा है लेकिन बहुत महान है कहावत से। इन गिविंग वी रिसीव, जो हम देंगे वही मिलता है। दूसरों को गाली देंगे तो बदले में फूल की माला नहीं मिलने वाली, क्या मिलेगा? वही मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। रिएक्शन तो मिलता है। दूसरों को तकलीफ देंगे, दुख देंगे, समस्या देंगे, हमें भी मिलने वाला है। हमें बुद्धिमान होना चाहिए, हम दूसरों को वो देंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें दूसरों का प्रेम चाहिए, हम दूसरों का सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हमें दूसरों का अच्छा व्यवहार चाहिए, तो हम देंगे दूसरों को। हमें दूसरों से अपना वैल्यू चाहिए, सम्मान चाहिए, तो हम देंगे। ओके, तो जीवन के विषय में हम ये बोलते हैं कि नवोदय विद्यालय हमें बड़ा सौभाग्य है जीवन को महान बनाने के लिए। तो पहले बोलते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं वी शुड बी ग्रेटफुल, थैंकफुल, कृतज्ञ कि हमें बहुत कुछ दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है नवोदय से, समाज से। नवोदय क्या है? देश का व्यवस्था है, समाज का व्यवस्था है कि हमें इतना अच्छा व्यवस्था मिला है अच्छा बनने के लिए। तो पहला भाव होता है कृतज्ञ भाव। द फर्स्ट लाइफ वैल्यू वी शुड शो, कल्टिवेट। हमें जीवन में होना चाहिए कृतज्ञ होना। फिर बोलने के लिए थैंक यू, फिर बोलने के लिए दिल से कि हम कृतज्ञ हैं। इसका मतलब क्या? कृतज्ञ, ये मतलब जानने वाले, क्या? जो कुछ किया गया है अपने लिए। कृतज्ञ, दो शब्द है, कृतज्ञ, जो किया गया है उसके हम भूलने वाले नहीं हैं, याद रखने वाले हैं। क्यों? तो हमें उसका कीमत पता होगा, क्या दिया गया है। यदि हम भूल जाएंगे
कि हमें दिया गया है, कौन दिया है, उसको भूल जाएंगे तो हमें जो दिया गया उसका हम सही उपयोग नहीं ले पाते हैं, हम उसका वैल्यू खो देते हैं, नहीं समझते। बीइंग ग्रेटफुल इज द हाईएस्ट वैल्यू, स्पीच लाइफ वैल्यू, सबसे महान मूल्य है कृतज्ञ होना अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति और सबके प्रति, जो हमें यहाँ सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सभी बच्चों में अच्छे गुण होते हैं, अच्छी कला होती है, अच्छे कौशल होता है, तो हम उससे सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो वी मस्ट बी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू दी ऑल एंड ऑल्सो विद दी लॉर्ड। भगवान के प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? जीवन देने वाला भगवान, अपना जो अस्तित्व है वो भगवान ने दिया है, भगवान की वजह से। जो हम बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, नहीं सुना कभी? जब की पूजा होती है, भगवान की आरती होती है, तो उसके बाद गाते हैं संस्कृत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। सुना है कभी? हाँ, त्वमेव विद्याधरणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो ये हिंदी में जो प्रेयर है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान आप हम सबके माता पिता, बंधु सखा, साथी और सहारा हो, और आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? अपने तो है, बैचमेट्स है, स्कूल वाले हैं, माता पिता है, शिक्षक है, दुनिया वाले हैं, सब कुछ है। ऐसा क्यों बोलते हैं यहाँ पे? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोलते हैं, दुनिया वाले हैं, माता पिता हैं, फैमिली वाले हैं, सब हैं, लेकिन वो लोग थोड़े समय के लिए, उनका एक लिमिट भी होता है, सीमा होता है। माता पिता साथ में भी होंगे, तब भी जब तबीयत बिगड़ता है, कुछ नहीं कर पाते, डॉक्टर के हवाले छोड़ देते हैं, डॉक्टर कुछ करो। और डॉक्टर भी जो है उसका एक लिमिट होता है, वो थोड़ा बहुत अपना प्रयास होने के बाद बोलते हैं भगवान आप संभालो, मैंने जो था वो कर दिया, आपका अगला आपके हाथ में। इसलिए बोलते हैं कोई ना अपना सिवा, सदा के लिए। और केवल सदा के लिए नहीं, भगवान में शक्ति भी है, वो कुछ कर सकते हैं, उनको कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। गॉड इज अनलिमिटेड। भगवान जो है अनंत है, उनकी शक्तियाँ अनंत है। यदि हम चाहें तो हम सब कुछ भगवान से पा सकते हैं। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर कभी कोई। अब गाते कभी नहीं गाते? सुना है कभी? ओके, तो हमने नवोदय में बहुत डेली गाते थे, बहुत जगह गाते थे। तो आप लोग क्या ना, साउथ इंडिया में जो है हिंदी आपको इतना नहीं जमता है, तो फिर हिंदी प्लेयर आपको पता नहीं होगा या आपने इतना नहीं होगा सिस्टम में। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल मतलब मिस्टेक्स, गलती करना। गलतियाँ होती है, अपना स्वभाव है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो बार बार एक ही गलती नहीं करता है, नया नया गलती करता है, मतलब कुछ नया सीखता है। और आगे बोलते हैं, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वही होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नीक रास्ते पे हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो। बहुत अच्छा भाव है इसमें। हम तो अभी मतलब कितने 30 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज भी हम भूले नहीं हैं। क्यों? हम इसको पालन करने का प्रयास हमेशा करते हैं। ये बात नहीं है कि हम प्रतिज्ञा लेंगे और सोचेंगे नहीं कि हमने प्रतिज्ञा क्या लिया है, हमने वचन क्या लिया। प्रतिज्ञा मतलब वचन, प्लेज, बिग, बड़ी बात है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा अपना संस्कृति है युगों युगों से। तो हमें जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसका ध्यान होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि पालन करना है। बोलते हैं प्रेयर, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा। आगे नव सूर्योदय नव चंद्रोदय। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, केवल गाने के लिए। हाँ, गाना है, बोलना है, लेकिन पालन भी करना है, सोचना भी है। ध्यान दीजिए, लास्ट बच्चे जो हैं, आपका ध्यान है। अब तो सब लोग झुक गए, सुना बेटी। जब झुक जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है, हम मंद बुद्धि हो जाती है। तेज बुद्धि के लिए सावधान, अलर्ट। ओके, प्लीज पे अटेंशन। थोड़ा समय है, ज़्यादा समय नहीं, तो सुनिए। एक आदत जो है मुझे बचपन से है, जो मुझे बहुत फायदा दिया है, लाभ दिया है। क्या आदत है? आपको सुनना है? बहुत सिंपल आदत है, आप सबको वो काम में आएगा। चलेगा? ओके। नवोदय में, स्कूल में, सब जगह, मेस में भी अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं, कोट थॉट्स होते हैं। आपने देखा है? हाँ, अच्छे विचार होते हैं, सुविचार, अच्छे कुछ पोस्ट होती हैं। हमें जब पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका मतलब क्या है, मीनिंग, वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके बाद थर्ड चीज़, पालन करने का प्रयास करना चाहिए। पहले पढ़ना, बाद में सोचना, तीसरा चीज़ पालन करना, तो फिर शक्ति मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप प्रतिज्ञा लेते हैं तो क्या बोलते हैं हिंदी में कि भारत, हाँ, आपका देश है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया इज माय, हाँ, इंडिया इज माय कंट्री। हाँ, मुझे पता है आपको बोलो। तो पूरा देश जो है आपका है। पूरा देश किसका है? आप बचपन से बोल रहे हैं इंडिया इज माय कंट्री, बोलते कि नहीं? आगे क्या बोलते हैं? ऑल इंडियंस आर। हाँ, ये भी कल बोलने के लिए नहीं है, हमें सोचना चाहिए कि हम सब कौन हैं? भाई बहन हैं। तो हमें ध्यान दीजिए। आपको कभी अकेला नहीं लगेगा? अकेला, आजकल समस्या ऐसी है, हम सबके बीच में होते हैं और सोचते हैं मैं अकेला हूँ। वी फील लोनली। क्यों? हम दूसरों को अपना नहीं समझते हैं। अपने साथ जो है आजू बाजू वाले, उनको हम अपना नहीं मानते हैं। बच्चों, मुझे आज पूरे देश में जाने का जो इतना उत्साह है, जो आनंद है, क्यों है? क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। क्योंकि मैं बचपन से सुना हूँ कि भारत किसका देश है? हमारा नहीं, मेरा देश है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया इज माय कंट्री। तो अपना क्या होगा? मेरा। हमारा मतलब सबका, अपना देश है। तो जो भावना है आपको फिर देश के लिए जोड़ेगा।
देश के साथ। लास्ट पॉइंट, आई लव माई, हाँ मुझे अपना देश प्राणों से भी, हाँ कितनी बड़ी बात बोलते हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यार। और देश मतलब क्या, माटी, केवल माटी पत्थर, देश मतलब देशवासी, समझना चाहिए। देश का मशीन नहीं, देश का गाड़ी नहीं, देश का कोई सिस्टम नहीं, देश के लोग, देशवासी। पहली बात, देश किससे बनता है? लोगों से बनता है देश, सब जीवों से बनता है। ओके प्लीज कीप क्वाइट। तो हमें समझना चाहिए अपना कितना बड़ा धन है, कितना बड़ा अपना सौभाग्य है कि हम अकेले नहीं हैं। कभी लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कभी, सर हम लोग बड़े, आपका ध्यान है लड़कियों का, प्लीज़ कीप क्वाइट। क्यों? यदि आप है ना शांत नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे, फिर बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। अब मैं केवल इनके लिए नहीं आया हूँ बोलने के लिए, या इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ कि यदि आप नहीं सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो मुझे फिर ना कोई अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा समय है, जीवन की बात है, तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके फ़ायदे में मुझे खुशी क्यों होगी कि प्रतिज्ञा में लास्ट में क्या बोलते हैं? सबके सुख समृद्धि में मेरा सुख निहित है। और ना ऐसा बोलते हैं कि सबके सुख समृद्धि में क्या है? मेरा सुख निहित है। माई हैप्पीनेस लाइज इन दी वेलबींग ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ ऑल अदर, है ना, कंट्रीमैन। सबके सुख समृद्धि में मैं अपना सुख, तो वही बात, सभी अपने हैं। अपनों को खुशी देने में, अपनों को अपने की सेवा करने में हमें आनंद मिलता है। क्यों? वो प्रेम का लक्षण है। आई लव माई कंट्री। तो आपकी जो भूख होती है ना, प्रेम के लिए भूख होती है, वो कैसे पूरा होगा? सेवा करने से। ध्यान दीजिए, लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर प्रेम है नहीं माता पिता का? आपको चाहते हैं कि नहीं? बहुत चाहते हैं। अनकंडीशनल लव होता है माता पिता का। तो फिर वो केवल बोलते नहीं हैं बेटा आई लव यू, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बिना बोले भी वो हमेशा क्या देते रहते हैं? आपको सेवा देते रहते हैं, आपकी सब व्यवस्था बनाते हैं, आपके लिए सब अच्छा चीज़ देते हैं। वो क्या है? प्रेम का लक्षण है। कुछ लोग केवल बोलते हैं, देते कुछ नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल मतलब है, वो कोई स्वार्थ, सेल्फिशनेस है। तो हमें समझना चाहिए, सेवा करने से हमें आनंद मिलता है। क्यों? सेवा ये अपना स्वभाव है। सेवा क्या है? अपना ध्यान दीजिए, स्वभाव। स्व मतलब अपना भाव, अपना भाव। बॉडी का भाव अलग है। अभी ध्यान दीजिए, अंतिम बात बोलता हूँ, लाइफ स्किल्स जो विषय है, कि हमें समझना चाहिए कि बॉडी जो अपनी है, फिजिकल बॉडी, सबका बॉडी है, स्वस्थ है, बॉडी हेल्दी है। तो ये जो बॉडी अपनी, ये हम नहीं है। हम नहीं है तो कौन है? भूत। बॉडी जो है अपनी गाड़ी है। ध्यान दीजिए, कोई ऐसा बोलता है आई एम द बॉडी, कोई ऐसा बोलता है आई एम टॉल बॉडी, आई एम शॉर्ट बॉडी, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम ब्लैक बॉडी, आई एम वाइट बॉडी। कोई ऐसा बोलता है? कोई नहीं बोलता। कोई ऐसा बोलता है? हम क्या बोलते हैं? माई बॉडी इज टॉल, माई बॉडी इज शॉर्ट, माई बॉडी इज फैट, माई बॉडी इज स्लिम। ऐसे बोलते हैं ना? ध्यान दीजिए शब्दों पे। Nobody says I am body. Nobody says I am body. We say I have my body. Like ना, I have my vehicle. I have my vehicle. That is my vehicle. That is my house. ऐसे बोलते हैं ना? कोई ऐसे बोलता है I am the house. कोई ऐसे बोलता है I am Nilgiri house. I am Aravalli house. कोई ऐसे बोलता है? No. We say
माई हाउस इज अरावली, माई हाउस इज शिवाली, ऐसे बोलते ना, ध्यान दीजिए। वैसे ही बहुत आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात बोलो, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। आपका जो समस्या होता है, सर डिस्ट्रैक्शंस आती है, मन भटकता है, फोकस नहीं होते अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, तो उसका समाधान हो जाएगा समस्या का। कैसे? ये समझने से, ये चीज़ बेसिक चीज़ है जीवन का, अपना अंडरस्टैंडिंग। ये जो बॉडी है, ये अपना व्हीकल है। कोई ऐसे बोलता है आई एम द व्हीकल, कोई ऐसे बोलता है आई एम टाटा सुमो व्हीकल, आई एम बोलेरो व्हीकल, कोई ऐसे बोलता है। हम क्या बोलते हैं? दैट इज माई व्हीकल। वैसे ही बॉडी जो है हम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम कौन हैं? वी आर द ओनर, वी आर द ओनर ऑफ द व्हीकल। और बोल सकते हैं दिस इज लाइक अ हाउस, वी आर स्टेइंग इन द हाउस ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑल्सो इज लाइक हाउस। थोड़े समय का होता है, बोले भाड़े का घर, बोले किराए का घर होता है, रेंटेड हाउस, रेंटेड हाउस। वैसे ये शरीर हमें कुछ समय के लिए दिया गया है। अपना शरीर हमने बनाया है, डिज़ाइन किया है, सब मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने एप्लीकेशन किया था, ऐसा मुझे मिलना चाहिए बोल के। वी आर गिवन द बॉडी फॉर सम टाइम। बॉडी इज टेम्पररी, बॉडी इज टेम्पररी। वी आर लुकिंग फॉर, हम चाहते हैं, हमें परमानेंट जीवन जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव परमानेंट लाइफ, चाहते कि नहीं? हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हमें बीमारी नहीं चाहिए और मृत्यु किसी को नहीं चाहिए, हम जीना चाहते हैं। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ये बॉडी नहीं है जिसका बुढ़ापा आता है, जिसको बीमारी होती है और जिसका एक दिन अंत भी होता है, ये गाड़ी बंद पड़ती है। लेकिन हम जो है जिसे बोलते हैं ब्रह्म, जीव या आत्मा बोलते हैं, सोल, इंग्लिश में सोल, जो भगवान का अंश है, उसका स्वभाव क्या है? सत चित आनंद, जो टॉपिक लिखा है हाँ, दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, वो मैं देता हूँ 5 मिनट। स्पिरिचुअल नॉलेज की जो ज्ञान है और नवोदय विद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है। इसलिए अपने लोगों में, जे लोगो जो है यहाँ पे है लोगो, यस, तो जे लोगो में जो शब्द हैं सबको पता है, सबके टाई पे होता है, बेल्ट पे होता है, सब कपड़ों में होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म। बहुत बच्चों को इसका मीनिंग पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। कौन लिखना, वो तो एग्जाम में आने वाला नहीं है एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में क्यों पढ़ना, क्यों समझना है ना। तो बच्चों वो जो उसका मतलब है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ये है, ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, फिजिकल, केमिकल, मेडिकल, टेक्निकल, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है। सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, प्रज्ञानम, सबसे प्रख्यात, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या है? जीव, आत्मा, जो जीवन का आधार है। अपना बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस में बायोलॉजी होता है ना। अपना बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी का स्टडी है। एनिमल बॉडी जूलॉजी, प्लांट बॉडी बॉटनी, एनिमल अपना ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी। लेकिन इस बायोलॉजी में मन, बुद्धि, अहंकार, ईगो तो समा होता है, ईगो, और फिर आत्मा, जीव, और बॉडी में तो भगवान भी होते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा साथी, उसका कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए अपना मॉडर्न साइंस जो है उससे एक लिमिट है। तो हमें नवोदय समिति जो लोगों में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, थोड़ा ब्रह्म ज्ञान की बातें सिखाना चाहता है कि हमें पता होना चाहिए हम जो है भगवान के अंश है। जो दुनिया बनाते हैं, कि बनाते नहीं हैं, उन्हें चलाते भी हैं। हाँ, हमने ऐसा देखा नहीं होगा आँखों से कैसे भगवान दुनिया बनाए,
लेकिन दुनिया तो बनी है, इतनी महान बनी है, जैसे एक आम का गुठली होता है या कोई चीकू एप्पल मैंगो, उसका सीड होता है ना, सीड बीज, वो ज़मीन में डालने से फिर एक पौधा आता है, फिर एक बड़ा पेड़ बनता है, उसको फूल आते हैं, फल आते हैं, और सब में क्या होता है, बीज होता है, सीड। वापिस उसमें भी बीज में अनेक ऐसे लाखों पेड़ बनाने की शक्ति होती है। तो भगवान की ऐसी दुनिया है अद्भुत कि ऐसी उसमें शक्ति है। यदि हम चाहेंगे मोबाइल का पेड़ बनाएंगे, मोबाइल का पेड़ लगाएंगे, इसको डालेंगे ज़मीन में, फिर पानी देंगे महीना भर, फिर पेड़ आएगा, फिर फूल आएंगे, फिर छोटे छोटे मोबाइल आएंगे ऐसा होगा? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते मनुष्य जो अपने आप ऐसा बनाएगा। लेकिन भगवान ने जो बनाया है हमें समझना चाहिए। लोग बोलते हैं भगवान कहाँ होता है, कौन देखा है, जैसे कि मोबाइल जैसी चीज़ है। हाँ, भगवान को देख लिया ऐसे, भगवान सब जगह है, उनकी शक्तियाँ हैं, हमें समझना चाहिए। जैसे बोलते सन गॉड बोलते हैं ना, सूर्यदेव सन गॉड, वैसे बोलते हैं मून गॉड, कितनी उसकी शक्ति है। तो हम रोज़ देखते हैं सन गॉड को, आंखों से हम देख नहीं सकते उसको सब बहुत समय, लेकिन है, बोलते हैं ना पवन देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सब देवता है। जैसे अपने स्कूल का भी एक देवता होता है, स्कूल का भी एक देवता होते हैं। देवता मतलब क्या? कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? कंट्रोलर, ईश्वर। कौन है देवता? प्रिंसिपल सर, बराबर। कि जिनका एक अधिकार शक्ति होता है, कंट्रोल होता है सबके। तो बोलने का मतलब ये है दुनिया में थोड़ा समय से लास्ट, तो दुनिया में जो है जो कुछ बना है वो वही तो बनाया है, ऐसी बात नहीं है अपने आप बाई चांस कुछ तो ऐसे ही बन गया नो। आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग ऐसा कोई पेंटिंग आपने देखा है कभी नोटिस बोर्ड पे? जो होली के कलर्स उड़ते हैं ना, होली के कलर्स उड़ते उड़ते एक कागज़ पे गए, साथ में ब्रश भी गया, तो पेंटिंग बन गया। बाद में एक झोंका आया तो पेंटिंग चिपक गया नोटिस बोर्ड पे। ऐसा कोई पेंटिंग देखा है? नहीं देखा सर। पेंटिंग बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, है नहीं? तो सादा पेंटिंग बनाने के लिए इतना हम सोचते हैं कोई होना चाहिए। दुनिया बनाने के लिए कोई नहीं होगा, जिसमें एक सिस्टम है, जिसमें एक साइकिल है, ऑर्डर है कि नहीं? सीजनल चेंजेस होते हैं, सब कुछ सिस्टम में होता है, कंट्रोल में होता है। तो बच्चों, हमें अपने बुद्धि से समझना चाहिए भगवान जो है कोई कल्पना नहीं है। ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। वो सबके माता पिता भगवान, दुनिया के माता पिता हैं। तो हमें समझना चाहिए क्यों? यदि हमें भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, तो फिर हम अच्छे नहीं बन सकते, हमें फिर शक्ति बुद्धि नहीं होगा। क्यों? हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, जो उनको बताया, हम भगवान के अंश है। भगवद गीता में एक श्लोक है, उससे हम अपनी जो क्लास है उसको हम विराम देंगे। भगवद गीता में जो वेदों का इसेंस है, वेदों का सार है, कि भगवान ज्ञान दिए हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद अनेक प्रकार के होते हैं, मुख्य 4 वेद हैं जो हम ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, जो अपना होता है BMS कोर्स ना, आयुर्वेद, इसे वेदों का भाग है। अध्यात्म विद्या वेदों का भाग है। आज सबको वेद पढ़ना संभव नहीं है, सारे वेद उपलब्ध नहीं है, लेकिन भगवद गीता जो है सारे वेदों का जो सार है हम पढ़ सकते हैं, जिसमें ज्ञान है। तो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जो माता देवी सरस्वती होती हैं, उनके हाथ में जो बुक्स है, आपने देखा है, वो वेद है। वेद का मतलब ज्ञान। तो वेद कौन दिया ज्ञान? भगवान दिए। पहले दिए ब्रह्मदेव को, अब पहला यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पहले जीव अमीबा नहीं है, पहला जीव ब्रह्मदेव है, जिनका जन्म कैसे होता है? भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है ब्रह्मांड में, जब भगवान लेटे होते हैं पानी में, भगवान विष्णु अनंत नाग के बेड पे लेटे होते हैं, माता लक्ष्मी के चरणों में बैठी होती, फोटो देखा होगा,
और कमल के फूल पर ब्रह्मदेव का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मदेव तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, फिर भगवान को दर्शन देकर वेदों का ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मदेव जो प्रश्न था मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, तो ये ज्ञान वेदों में दिया गया है और वही ज्ञान आज भी उपलब्ध है। तो ये जो श्लोक है भगवान बताते हैं हम सभी जो हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, अपनी स्थिति क्या है। पीछे बोलिए, ममैवंशो जीवलोके ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं हम सभी उनके नित्य सनातन अंश है। मम एव अंशा, अंशा मतलब पार्ट, वी आर डिवाइन पार्ट्स ऑफ गॉड। इसलिए अपना जो जीवन है भगवान जैसा नित्य है, सत्य चित आनंद, सत्य मतलब शाश्वत, चित मतलब चिन्मय, ज्ञान में आनंदमय। बॉडी जो है टेम्पररी बॉडी, ये ना शाश्वत है, टेम्पररी है, ये ज्ञानमय नहीं है, बॉडी अज्ञानमय है। हमें ये पता नहीं हम कहाँ से आए, हम कितना समय बॉडी है चलने वाला वो पता नहीं, बाद में हम कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। तो ये अज्ञान जीवन का। और बॉडी हमें दुख देता है हमेशा, बचपन से हमने देखा है बॉडी पेन, है ना, बैठे बैठे तकलीफ होता है, तो बॉडी गिव्स ट्रबल। लेकिन जो आत्मा है, जो हम है, उसका स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, परमानेंट। चित मतलब नॉलेजेबल, चिन्मय, और आनंदमय, ब्लिसफुल। तो बच्चों भगवान बताते हैं हम सभी भगवान के सनातन अंश है। लेकिन हम दुनिया में जो आए हैं, दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए हैं? अपने कोई इच्छा है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ अपनी इच्छा है तो आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में जो आए हैं, आप लोग पहले से हैं या स्कूल में आए हैं? आप लोग स्कूल में पहले से हैं जब स्कूल बना, या आप आए हैं कभी? आपको पता है कब आए ना? आप स्कूल में कब एडमिशन लिया आपको पता है? और आप स्कूल में कहाँ से आए हो आपको याद है? भूल गए? याद है सर, कैसे भूलेंगे माता पिता को? तो बच्चों आपको अपने गांव जाने का इच्छा होता है या नहीं होता है? जाना चाहते हैं सर, वेकेशन में, है ना, जाते कि नहीं? जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है सर नवोदय में छोड़ूंगा नहीं सर, यही जीऊँगा और यही मरूंगा। कोई ऐसा बोलता है? नहीं। हम थोड़े समय आए हैं पढ़ने के लिए, बाद में जाते हैं। बच्चों यदि हम समझेंगे जीवन के विषय में, हम दुनिया में आए हैं लेकिन हमें अभी याद नहीं हम कहाँ से आए, तो हमें जाने का इच्छा नहीं होता है। पीपल वांट टू सेटल इन द वर्ल्ड। तो लोग सोचते हैं दुनिया में हमेशा रहना। क्यों? याद नहीं ना कहाँ से आया है। एक जब हमें भगवत गीता से भगवान से ज्ञान मिलता है कि हम दुनिया में भगवान के धाम से आए हैं, तो हमें जाने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने गांव जाएंगे तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज लोगों को मृत्यु का भय होता है, एग्जाम का टेंशन होता है। क्यों? सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे क्या होगा पता नहीं। तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि अपना जीवन जो है नित्य है, परमानेंट, एज द सोल। इससे क्या होगा? हमें बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। वी यूज़ द बॉडी, वी मेंटेन द बॉडी फॉर हैप्पी लाइफ, बट वी डोंट डिपेंड ऑन बॉडी टू बी हैप्पी। वी आर ऑलवेज हैप्पी एज अ डिवाइन सोल। वी रिस्पेक्ट ऑल अदर्स, क्योंकि सभी क्या है? भगवान के बच्चे हैं सभी। तो हमें भावना जो है कि होना चाहिए कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और हम भगवान के सेवक हैं। जो ना सबका मालिक, क्या बोलते, सबका मालिक एक, तो भगवान है। तो हम सेवक हैं हनुमान जैसे। तो जब हम अपना जो धर्म है, धर्म उसे कहते हैं गुण धर्म, प्रॉपर्टी, नेचर, गुण धर्म।
समझते हैं कि हम सेवक हैं। धर्म अनेक नहीं होते हैं, धर्म एक ही होता है। जैसा शक्कर का धर्म होता है मीठा होना, वैसे हम सबका, सभी जीव का धर्म है सेवा करना। किसकी सेवा? हम जिसके हैं, भगवान की सेवा। सब लोग बोलते हैं बच्चों ने माता पिता का सेवा करना चाहिए, वैसे हम सबका माता पिता अल्टीमेटली भगवान है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम सबका भी सबसे जुड़ते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं। तो बच्चों बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शांति से सुना। आपको कुछ समझ में आया कि हमें फोकस होना है भगवान से अपना संबंध जोड़कर। हमें सुख के लिए बाहर में ढूंढना है, सुख के लिए अपने अंदर जो अपना स्वयं आत्मा है, हम हैं, वो समझना चाहिए और जीवन का समाधान पाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को शुभ संध्या। लाइफ स्किल, जीवन कौशल के बारे में बहुत ही सुंदरता से यहाँ अपना विचार व्यक्त किया और खुद जो नवोदय के छात्र होते उन्होंने किस तरह अपना जीवन और जिया और नवोदय से क्या क्या फायदा है वो भी उन्होंने बताया। और जीवन का कौशल, लाइफ स्किल कैसा रहना चाहिए ये भी उन्होंने बहुत ही सुंदरता से आप लोगों को समझाया। समझ आया कुछ? तो श्री स्वामी जगन्नाथ यात्रानाथ दास सर को विद्यालय की ओर से और प्रिंसिपल की ओर से और सब आप सभी की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपका जो विचार रहा बहुत ही धन्यवाद बच्चे ज़्यादा जोश है सभी में, तो अपना जोश जो है थोड़ा तो अपना एक ही उठाना है। और प्रभारी आचार्य जी को भी मैं सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय की ओर से आओ सभी शिक्षकगण, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में आप लोग जो है यहाँ पर शांत चित्त से बैठ के जो उन्होंने जो समझाया, आपने जो सुना, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक, थैंक यू।